Thank you. Absolutely wonderful. In fact, aap teenon ne, for those of you who don't know, Salma had to join us today, but because she couldn't, she's actually signed in. She may not be able to participate, but because she couldn't, उन्होंने इससे पहले हमें, अपनी नज़म भेज दी थी, which she had recorded, and she had spoken to the theme of nature. And then, we had Ayaz Wasay speak to, Iqbal's religious mysticism and spiritualism, and, describe that very well, how he felt a direct connection, with the divine. And of course, I don't say it in words, as good as the ones he used. And with Rafey, we've had, a message for the youth that is centered on those concepts and also takes Iqbal's key concepts of ishq, of khudi into account. Of course, like Rafey has mentioned as well, a few minutes are not enough to do justice to as vast and also as nuanced a message as Iqbal's, right? क्योंकि वो जहाँ पे इल्म और साइंस की बात करते हैं, वो वहाँ पे रिलीजन और मिस्टिसिज्म की भी बात करते हैं. To understand Iqbal's message is to realize कि उनकी themes कितनी ज़्यादा holistic हैं. Otherwise, like I mentioned earlier, the message is subject to both censorship and erasure, or, perhaps to a superficial understanding of it, which was also in context to the developments that he saw happening around him at the time of, he saw the First World War, and then he saw the world and how, the Ottoman Empire collapsed. And that's when he developed that concept कि, you need to have unity. You need to rise again. और वो किस तरह करना है, वो आप लोगों ने अपने मैसेज में बहुत ही अच्छी तरह बताया है. So if, you allow, and तो पहली बात, Rafey, आपने जो बोली, where he, and I'm sorry, I couldn't write out the entire thing, but this is a concept of Iqbal's that's fascinated me for a while, कि जो अकल का गुलाम हो, right? So he believes that the heart and the mind need to operate with a certain amount of autonomy. Of course, there's a connectedness in his message, but even when you, read about his, religious thought and philosophy, he speaks about the heart having its own insight, its own perceptive capability, जो शायद आपको आपके religious concept से connect करता है. So I would love for you and, even Ayaz Wasay, because he's speaking to Iqbal's religious concepts, to, speak a little bit more about this. So basically देखें, ईमान जो है itself is a matter of ishq and heart. खुदा को although rationality के through भी explain किया जा सकता है, और I mean there are a lot of arguments for the existence of God, लेकिन जो ईमान है वो basically दिल से एक अनदेखे खुदा के ऊपर अंधा एतकाद होना is a matter of heart. तो इकबाल जो हैं उन्होंने basically शुरू से ही उनका view ये था कि I mean rationality जो है उसकी अहमियत को इकबाल ने अंडरमाइन नहीं किया, बट इकबाल ये कह रहे हैं कि जहाँ चॉइस हो वहाँ पे हमेशा इश्क जो है वो प्रेसिडेंस ले जाएगा, क्योंकि जो जज्बा है, what I feel is stronger than what I think, is what Iqbal, that's how Iqbal looks at it. I mean, that's my view. And और वो religion का उससे direct linkage है, because जो ईमान है उसकी basis ही heart के matter के ऊपर है, ईमान के ऊपर है, वो rationality और mind के ऊपर नहीं है. Yeah, that's beautifully said. Rafey साहब ने explained very well, और साफ exactly मैंने भी कहना था. Basically इश्क जो है, इश्क खुदा, इश्क जो है टोटल है, and it's बिल्कुल जिस तरह होना चाहिए. इश्क का मतलब ये कि कोई और नहीं आना चाहिए. इश्क का फाइनल जो है, that is फना, अपने आप को खत्म कर दे. इश्क के ऐसी बिलीफ हो जिसमें purpose of इश्क खुदा है to make Allah राजी, make him razi for you, and when that happens you're in a level where you don't need anything else. Buddhists भी सारे उनके the different form of saying things, लेकिन हमारा जो है Islamic philosophy, Islamic जो religion है उसमें यही कहते हैं, हमारी सूफीज़म हो या दूसरी चीज़ें हैं, इसमें उसके बाद फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं. और आशिक जो होते हैं नॉर्मल इंसान, जो इंसानों में आपस में इश्क होती है, वो भी दुनिया उनका नज़र यही आता है कि इश्क हो गया तो बाकी चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं. उनके लिए the end is there, the beginning is there, and nothing else in between. So that's how it is. And इस तरह इस्लाम में भी फिलॉसफी इकबाल ने बहुत अच्छी तरह समझाया इसको हर ज़माने में, और इसमें एम्फसाइज किया, लोगों को समझाया, और लेटर्स में क्लियरली एक्सप्लेन किया है, अपने अशार में समझाया है. तो इकबाल has clearly stated that it is the truth. ठीक है. Thank you for that. Yeah, I think that's very well explained. Sorry, I think Salma, you were saying something. I heard you talk. Yeah. So I was trying to say something. मैं कोशिश कर लूँ, शायद मेरी आवाज़ पहुँच ही जाए. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो अभी की गई, लेकिन इकबाल जब वो बात करते हैं इश्क की, तो ये बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल है कि ज़ात खुद एक
ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की जरूरत है। इसको कहते हैं गुजर जा इश्क से आगे कि ये चिराग राह है, मंजिल नहीं है ये। तो आप इसको, इश्क जो है वो आपको रास्ता दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। वो जो करेज एंड वो आपको इमोशनल एनर्जी चाहिए वो आपको उसके बगैर आप शायद सिर्फ फिक्र और फलसफे और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से वहां नहीं पहुंच सकते। उसके लिए जो आपको एक कुव्वत चाहिए, वो कुव्वत का सा चश्मा और वो जज्बा, वो सब इश्क फराहम करता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि मुझे लगता है कि जो इंसान की एक पहचान है या उसकी सिफात में से सबसे जो उसको दूसरों से अलग करती है, दूसरे जानदार से, वो उसकी यही है कैपेसिटी जो इश्क की एक है। और इश्क में आप हिसाब किताब नहीं करते, आपका एक इंट्यूटिव है ये। दिस इज एन इंट्यूटिव कैपेसिटी टू रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड व्हाट्स ग्रेटर देन व्हाट यू सी अराउंड योरसेल्फ। और इसमें मुझे वो डेनियल कानमैन याद आ जाता है, जो कि basically he's a psychologist but got the Nobel Prize for economics. So he talks about in his book Thinking Fast and Slow, he talks about system 1 and system 2. तो जो system 1 है वो वही है जो कि basically बहुत intuitive है और बहुत सी सूरतों में ये आपके impulsive भी है, लेकिन this is the intuitive part of ourselves. होता ये है जब हम बहुत ज्यादा सिर्फ इंट्यूशन पर और इस वाली सलाहियत पर रहते हैं जो कि सिस्टम 1 है, तो हम थोड़े से सुस्त भी हो जाते हैं। We are not engaging in the mental activity and critical thinking that Iqbal desires and asks you to engage in, क्योंकि वही होगा फिर दिल दुखेगा कि आपकी किताबें जो है वो रखी हैं मगरिब के पास और आपके जो दिल होता है सीपारा, वो जो इकबाल कहता है। लेकिन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। चिराग राह है ये, मंजिल नहीं है। तो इश्क की बहुत जरूरत है जो हमें इस तरह से नॉट स्टार, it teaches us, tells us to rise above and tell us what is the priority in our life, and then use all the critical faculty to really sift through the knowledge that's available and find our destinations. और इसीलिए वो एक और जगह पे भी इकबाल ने कहा ना, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, किताब खां है तू कि तू किताब खां है मगर साहिबे किताब नहीं। यानी आप वो वही बात कि आप एक कारी बनकर रह गए हैं और असल में तो आप खुद कुरान है। कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। तो ये है वो मोमेंट जिसकी इकबाल बात करता है और इसको समझने की जरूरत है। और इश्क एक बहुत बड़ी कुव्वत है और एक बेसिक, मैं समझती हूँ एक ऐसी चीज है जिसको हम शायद अभी पूरी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझ भी नहीं सकते कि कितना जरूरी है कि जब आपके पास ये इश्क की कुव्वत होती है तभी आप बेखतर कूद पड़ते हैं और अक्ल जो है महवे तमाशाए लबे बाम रह जाती है। तो ये थोड़ी सी बात मैं शामिल करना चाहती थी। Wonderful, beautifully stated. I think आप तीनों ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है. And Salma, thank you. I know you've had a lot going on, so thank you so much for making out time for this session and even to answer questions at this time. But I think आप तीनों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि how this operated for Iqbal, how ishq is a very key क्या कहते हैं, it's a driving force in your life if you want to get somewhere. और ये इश्क में एक mysticism connected है उनका साथ. It's not just an ishq with something worldly, it's an ishq with a spiritual element to it, and that is a driving force. But because Iqbal's message is vast and nuanced, it's important to recognize, or that each of you has spoken very well too. It's important to recognize कि वो साथ-साथ cognitive capabilities को undermine नहीं कर रहे, right? He's not saying कि आप बस मुल्ला बन के बैठ जाएं. He's not really encouraging you to give up this world either. He's just asking you to live in this world in a particular way कि आप अपनी final destination को mind में रखें. And your actions should be aligned to that. But again, he's taking his lessons from nature, जो आप तीनों ने अपने subject matter में बहुत अच्छी तरह address किया है. He's taking his lessons from history, from science, कि जो मुसलमानों की हुकूमत थी, the Muslim empires that were so prominent in the world at a certain period of time, उसमें किस तरह से knowledge disseminate हुई, and where we've gotten to, and 100 years later we're really not really doing any better. So I think बहुत ही relevant रहता है उनका message even in this day and age. We have a question from Javeria, and Javeria, thank you very much for asking this question. And I was just wondering, how did Iqbal develop that unshakable belief? उनकी जो staunch spirituality, जो भी थी वो, whatever it was, that just remained the same,
that strength of character. And I was just wondering, it might be off topic because I'm a mother, तो मैं हर चीज को उस लिहाज से देखती हूँ, उनकी कैसी upbringing थी, क्या चीज थी जिसने उनको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया कि उनके जो core beliefs थे, जो वो थे at the very core of his being, that never changed. It developed and he honed it over time. मगर वो कहाँ से आई वो चीज, और क्या हम सीख सकते हैं, क्या कोई सोर्स है जिससे हम और मालूम कर सकते हैं ताकि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को शायद थोड़ा बहुत उस तरह से ट्रेन कर सकें. इस चीज ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया कि मतलब that didn't change. Never changed. That's all I wanted to say. Yes. And actually, you're right. It came from his parents, and they actually from his father also. The studies that he had, unse काफी उन्होंने सीखा. And then subsequently his own teachers. But his belief was very firm. A lot of people, मैंने पहले भी कहा था कि लोग समझते थे कि वहाँ जाकर और इमैनुअल कैंट पढ़ने के बाद और दूसरी चीजों करने के बाद जो उनके beliefs आए हैं वो डेवलप in Germany या यूरोपियन था. ऐसा नहीं है. His belief was totally the same, exactly from the beginning. And I mentioned Kia 1906, 1937, because that was the active period of his letters writing and the communication with other people, very important people all over the world. सारे records हैं. There are several books at the Iqbal Academy में भी है, दूसरी किताबें हैं. उसमें काफी चीज जिक्र किया है. उसमें उनकी beliefs में कोई change नहीं आया. बहुत से लोगों ने समझा था कि उनकी beliefs were affected from Iran, और because ईरान में पहले जब रिवाइवल हुआ था यूरोप का, तो सबसे पहले वो वहाँ आए थे 500-600 साल पहले. लेकिन उससे पहले से अरब्स के वक्त जमाने यानी हुजूर के जमाने से जो फिलॉसफी था तसव्वुफ का, ये वही फिलॉसफी है, उसमें कोई चेंज नहीं है. एंड इन फैक्ट वो एग्जैक्टली ही रिमेन्ड द सेम. क्योंकि सब्सिक्वेंटली बहुत सारे, अगर आप लेटर्स पढ़ें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. फ्रॉम 1906 से 67 के बाद इवन 31 एंड 1937 में भी व्हेन ही वाज क्लोजिंग व्हेन ही वाज सिक, काफी बीमार थे, उस जमाने भी उनके खुताबात में सारी चीजें यही लिखी हुई है. ही हैज नेवर चेंज्ड. If I just add a little bit, देखें ये जो मेरा personal view है कि जो ये period था between let's say last 10-20 years of 18th century, 1880 से लेके around 1920, 1930 तक, इस period में मुसलमानों के जो greatest thinkers and अकाबरीन हैं वो इस एज में पैदा हुए हैं. I mean, हम ये अफसोस कर सकते हैं कि अगर वो इस जमाने में पैदा होते तो अच्छा था, लेकिन वो उस जमाने में पैदा हुए और उन्होंने एक बहुत ही फंडामेंटल फ्रॉम सर सैयद टू मौलाना जौहर टू अल्लामा इकबाल, तो इन लोग ये जो उस जमाने में मुसलमानों की सिचुएशन थी और उस जमाने में जिस किस्म के रिलीजियस हार्डलाइनिज्म ऑन द अदर साइड थी, तो ये जो न्यू थिंकर्स थे इन लोगों ने उसको देखा और फिर इनको वेस्ट का एक्सपोजर मिल गया. इन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ लिया किसी ने, और किसी ने जर्मनी में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री ले ली, और इन्होंने वो सिविलाइजेशन और वो देखी, और इन्होंने मुसलमानों की हालत ज़ार देखी साउथ एशिया के अंदर. एंड दे पुट दैट कंट्रास्ट into their thinking कि आप ये देखें, and they started thinking कि क्यों वेस्ट इतना आगे निकल गया और क्यों मुसलमान इतने पीछे रह गए. ठीक है, तो वो जो कंट्रास्ट था वो इतना ओवरवेलमिंग था उन तमाम लोगों के लिए जो कि अच्छे थिंकर्स थे और जो फिलोसफर्स थे, और उसकी वजह से इनकी थॉट में ये इतना पैशन और इतना वो आया है, क्योंकि ये उस मुसलमान बिल्कुल जमीन से लगे हुए थे उस जमाने में, और उनकी ये जो हमारे मौलवी हजरात हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनके अंदर फंसे हुए थे. कोई आज़ादी अफकार नहीं थी, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं था, सिवाय इसके कि मैं बस बेसिक अपनी चीजें पूरी कर लूं. क्योंकि एक शायरी पे कमांड थी, जबान अच्छी आती थी, बेहतरीन आला तरीन वेस्टर्न एजुकेशन साथ में मिल गई, तो उस कंट्रास्ट से आई थिंक अल्लामा इकबाल का थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, और उन्होंने मुसलमानों के लिए सोचना शुरू किया कि इनको क्या चीजें बतानी जरूरी हैं जिससे ये निशात सानिया होगी, जिससे ये रेनेसां होगी मुसलमानों की, और ये वापस बढ़ेंगे आगे. Iqbal actually, if I might add, he काफी inspired थे with Rumi, and he always considered Rumi as his inspiration, as his murshid. So it was, but when he spoke about the Shirazi in Iran and others, कभी उनको negate नहीं किया as a शायर, but philosophy से कभी agree नहीं किया उनके, ना उनके तसव्वुफ से agree किया. He believed, yes, exactly. फारसी की वजह से भी यार साहब, क्योंकि फारसी पे कमांड बहुत अच्छी थी, तो फारसी शायरी और फारसी का भी इकबाल में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और रूमी की शायरी भी इकबाल ने पढ़ी हुई है, और जगह जगह रूमी के व्यूज जो हैं इकबाल की शायरी में नजर आते हैं. Yes, that's wonderfully answered. Thank you. I think it's a very valid question. While studying Iqbal prior to this session, it was something that came to my mind as well. Again, having young children and raising them, आप ये सवाल पूछते हैं, but also to Rafey's point के
उस जमाने में आए थे सारे ग्रेट थिंकर्स और अब हाल काफी डिप्रेसिंग है. But if you really think to that, to Rafi's point, Iqbal had very good command of Persian. Iqbal and the others, जो Sir Syed and so on, they had exposure to Western knowledge as well as to Eastern knowledge, जो इस टाइम पे हम सब खो चुके हैं, right? So I think those are very big factors. At that time, Iqbal's initial university education that was in Government College Lahore, it was at that time that he was first influenced by Western philosophers. Wahan pe jo British teachers the who took an interest in Iqbal's education personally, who saw his merit, they influenced him a lot. Then to Ayaz Wasay's point about Iqbal's upbringing, his parents were very mystical, very spiritual, बहुत spiritual थे. उन्होंने बहुत ज़्यादा teachers से पढ़ा हुआ था, Sufi teachers से पढ़ा हुआ था. But again, Iqbal was a very reflective mind always, और उनकी इतनी vast knowledge थी that he would take lessons from all of them, but he would also challenge them. तो जो Sufi beliefs के उनको नहीं appeal करती थी, he would challenge them, right? So I think it was that vastness of his knowledge that led him to become the great person that he was. I had read this book by Zafar Anjum prior to this session, और उसमें मुझे 3 चीजें I identified as possibly having led him to become the kind of thinker he was. पहली बात थी उनकी learning, दूसरी बात थी his reflection, right? But 2-3 सवाल थे मेरे ज़हन में. I would love for some more elaboration on the concept of Taqdeer, and I think, sorry, I'm going back to Rafi's 10 points, जिसमें शायद 4th point was on the youth becoming an agent of change, right? और साथ साथ, if you look at our culture and perhaps our religious tradition, the way it's taught to us, एक concept है तकदीर का कि शायद लिखी हुई है. Is our तकदीर written? Do we control it? इकबाल की poetry शायद हम पूरी तरह समझते नहीं हैं, right? Because जब इकबाल कहते हैं कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, right? So we probably don't understand that. So I would love for each of you to comment on his concept of taqdeer and his understanding on that. So देखें एक बार खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले ही हमने लास्ट टाइम भी इस पे एक छोटा सा डिस्कशन किया था. आई थिंक द पॉइंट इज कि इकबाल का ख्याल उनकी शायरी से ही लगता है कि तकदीर जो है वो यू हैव द पावर टू चेंज योर तकदीर. आई मीन दे फील के यू कैन रेज योर सेल्फ. इसी शेर की अगर हम मिसाल ले लें इसका मतलब यही है कि यू हैव द पावर टू रेज योर गेम और रेज योर लेवल टू एन एक्सटेंट कि योर तकदीर can be changed. This is God asking you how to, this is the level of खुदी का वो level आप पहुंच जाएं कि अल्लाह ताला ही आपसे पूछना शुरू कर दे कि क्या बेहतर है आपके लिए. So I mean this is, मेरा तो ये ख्याल है कि इकबाल ये समझते हैं कि तकदीर लिखी हुई जरूर है लेकिन उसको चेंज किया जा सकता है with your hard work, with your passion and with your prayer. Thank you. Anyone else want to add to that? Iqbal's taqdeer, actually taqdeer and tadbir. He mentioned taqdeer है tadbir तेरी, ये जहाँ चीज़ है लौ कलम तेरे हैं. So basically that's true. And his actually Persian was so strong that he could actually not fight but respond to the Persian scholars and poets wherever he disagreed with them on tasawuf, because theirs were different, his was different. And he actually did it. They would never go. He was very respectful to them as teachers, as scholars and poets. But in terms of the tasawwuf, he would explain to them that is not the kind of tasawwuf that you would like, or the Islamic tasawwuf. Niba, I just wanted to add here, while you're talking about taqdeer, that taqdeer, as I understand through his poetry, is that something, it is part of what you strive for as well. एंड जैसे कि वो आयत भी है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि आपको इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है. तो इकबाल भी जब ये कहते हैं कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो अल्लाह की रजा के साथ बंदे की रजा का होना, और जब वो एक अलाइंड होती है, और वो जब भी होती है कि जब आप एक हायर स्पिरिचुअल उस पे काम करते हैं. नॉट स्पिरिचुअल डजंट मीन दैट यू आर not living in this world and doing your job and working for the betterment of your society or community. I think it is more like that when you're working for the community and society, that you are in the service of God. तो तब जाके आपकी जो कोशिश होती है उसमें अल्लाह की कोशिश और अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है. और एक और जगह पे अल्लाह एक आयत है कुरान की कि यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, कि अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है.
सो अल्लाह का हाथ बंदे की कोशिश के ऊपर जब भी होता है कि जब बंदा कोशिश करता है, तो तकदीर का ये मतलब नहीं है कि हम स्टॉइक बन जाएं और एक फेटलिस्टिक हमारा अप्रोच हो, बल्कि ये कि हम कोशिश पर अपनी यकीन रखें और यकीनन कोशिश और नताइज अल्लाह पे, क्योंकि हम रहते असबाब की दुनिया में हैं, तो कोशिश करना हम पे लाजिम है। अगर मुसलमान अपनी ईमान की वजह से सोचे कि सब कुछ तो अल्लाह ने करना है तो हम कोशिश ही ना करें, तो ये इकबाल नहीं कहता। तो इसीलिए उसको कहता है कि वो उस दर्जे पे पहुंचे अपनी कोशिश को कि आपसे खुदा पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। Yes, wonderful. Thank you so much for explaining it, as beautifully as you have. I'd love for you to share a few words on, Iqbal and how you think, Iqbal continues to be relevant in this time, in the present day and age. In the present day and age, I think Iqbal would always remain relevant. His universalism of his message is something which goes beyond time and space. So, उनकी शुरू की शायरी में तो यकीनन ऐसा था, उन्होंने लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन ये जाहिर है कि वो उस जमाने की नेशनलिज्म और उसकी बात कर रहे थे। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने एक हो मुस्लिम हरम भी पासबानी के लिए दूसरा मिसरा भी मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बेसिकली जो यूनिवर्सलिज्म है उनके मैसेज का वही है ऐसा जो आज भी हम उनके कलाम को ताज़ा रखता है हमारे लिए। और शायद उनके कलाम को हम आज ज्यादा इसलिए समझ रहे हैं कि अफसोस की बात है कि जो बातें वो उस वक्त कह रहे थे, यानी आप देखें वो जो मुल्ला के ऊपर इनकी है कि वो किस कदर एक तंग नजरी का शिकार है। और शिकवा में जो उन्होंने बातें कही हैं हवाले से मुस्लिम उम्मा के हवाले से, तो क्या वो आज हमें नहीं लगता है कि वो पुरानी हो गई हैं? वो बातें तो आज भी लगता है कि हमारे लिहाज से कही गई हैं। तो अफसोस की बात ये है कि वो जो हमारी एक रिचुअलिस्टिक जहन है जो महज चीजों की जाहिर को देखता है, नहीं, इट्स फॉर्म एंड एसेंस की बात है। वी आर ट्रैप्ड इन द डिस्कशन ऑफ फॉर्म्स and we can't move beyond the form to look into the essence of whatever we're reading or studying, चाहे वो कुरान हो या कोई और कलाम हो। कुरान को भी हम उसके फॉर्म तक ही रहते हैं, उसके एसेंस को नहीं समझ पाते। इस जमाने के लिहाज से उसके एसेंस को हमने कैसे समझना नहीं समझ पाते। तो इकबाल की शायरी को भी हम महज फॉर्म तक देख पाते हैं, उसके एसेंस को हम, जो कि यूनिवर्सलिज्म है उनके कलाम का, उसको हम नहीं समझ पाते। और इसीलिए हम बहुत सारी चीजों में अभी तरह उसी तरह ही उलझे हुए हैं। वही हमारे मसाइल हैं जिनकी इकबाल ने निशानदेही की, तर्जे को हम फेरना, आईने नौ से डरना। तो वही चीज है ना, जब वो ये कहता है कि है दौड़ता अशबे जमाना, खा खा के तलब का ताजियाना, यानी जमाने का घोड़ा जो है वो तेज दौड़ ही जब रहा है, जब वो तलब का ताजियाना खाता है। तो हमारी कोशिशें, हमारी स्ट्रगल, उसके बगैर तो हम कुचले जाएंगे, जैसे मैंने उसमें भी कहा। तो बहुत सारा कुछ है सीखने के लिए, तफसील से समझ कर पढ़ने के लिए। ये एक तरह से जिस खुदी की, ये जिस सोवरेनिटी की हम आज बात करते हैं कि वी हैव टू बी अ सोवरेन नेशन, हमारी सोवरेनिटी को क्वेश्चन किया गया है, चैलेंज किया गया है, जिससे हमारी एक नेशनल स्टीम के ऊपर हमारी इज्जत बढ़ती रहती है। तो ये सिर्फ कहने से तो नहीं होगा कि वी वांट टू बी अ सोवरेन नेशन। क्या हम अपने फिक्र में और अमल में भी सोवरेन हैं, या वी आर एपिंग द वेस्ट इन एवरीथिंग, चाहे हमारे खाने पीने, रोजमर्रे की कोई अमल हो या किसी भी तरह की, हमारी उन चीजों पर भी तो नजर डालें ना कि हम अपनी जात के हवाले से और अपनी कौम के हवाले से किन किन चीजों पर क्या कहना चाहिए कि बेएतमादी का जो शिकार है उसको कैसे दूर किया जाए। तो जब तक ये नहीं करेंगे हम अपने आप को अपनी पहचान नहीं मनवा सकते। और यकीनन इकबाल इसकी निशानदेही बहुत पहले से कर रहे हैं। Absolutely. Thank you very much. You've described it in beautiful words that both capture the timelessness and the essence of Iqbal's teachings, but also how they remain relevant. आपने present time से connect किया है कि what is the cause of our current social situation, and शायद are we trying to ape the West? But again, the West is very advanced. वहाँ पे जो knowledge और research और education का standard है, you cannot compare that to what's happening at a high level over here. Of course, we do have institutions that are teaching Western degrees at a school level, लेकिन वो एक तो उसका reach लोगों तक बहुत limited है, उसमें जो knowledge और teaching है वो बहुत ही superficial level पे है। और अपनी languages
we have unfortunately relegated them, particularly as the generations go on, to schools that we consider inferior, unfortunately, right? So it is perhaps a post-colonial division jo bahut zyada post-colonial societies mein hai, कि, you have an English medium and an Urdu medium system, and, the two are entirely disconnected, and thorough knowledge and development of learning and education nahi hai the way it needs to be. So thank you for that, Rafey Zuberi and Ayaz Wasay. Aap dono ki your final concluding thoughts on Iqbal before we give another 5 minutes or so at the end to anyone to share poetry. I'd love to hear from you on your final concluding thoughts on Iqbal, and also building on what Salma spoke, to the continuing relevance of his message. राइट सो देखें, मैं बिल्कुल सलमा साहिबा की बात से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि यही बात है कि इकबाल बहुत अरसे पहले से जो बातें 100 साल से तकरीबन ये चीज़ें हमारे सामने हैं वो पॉइंट आउट करते आ रहे हैं, और हमने कभी भी उसको मतलब हम उसको उसकी फॉर्म से आगे उसकी एसेंस तक नहीं जा सके हैं. आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस सेशन फ्रॉम माय साइड ऑन आज की जो सिचुएशन है. आई थिंक उसके बारे में भी इकबाल ने चीज़ें लिखी हुई हैं. सो फॉर एग्जांपल यही मस्जिद कुर्तबा की जो एंडिंग लाइंस हैं उसमें इकबाल ये कह रहे हैं कि जी देखें, रोमन्स जो थे उनके ऊपर बुरा वक्त आया और फिर वो अपनी हिम्मत से और एफर्ट से दोबारा खड़े हो गए. गोरों के ऊपर डार्क एजेस आई, वेस्टर्न के ऊपर डार्क एजेस आई, वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, बट वो भी दोबारा वापस आ गए. और वो होप कर रहे हैं कि मुसलमान भी किसी तरह वापस उठ खड़े होंगे और वापस आ जाएंगे, और उसी के ऊपर वो कर रहे हैं. इसी तरह मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी ये कह रहा हूँ कि अगर कोई एक ऐसा डार्क मोमेंट है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का, तो हम भी इंशाअल्लाह ताला दोबारा खड़े हो जाएंगे अगर स्ट्रगल और इनकलाब जो है वो कंटिन्यू रहता है. तो आई विल जस्ट रीड द लास्ट 4 लाइंस ऑफ मस्जिद कुर्तबा, लास्ट फ्यू लाइंस. दरियाए कबीर जो है वो कुर्तबा से गुजरता है, उसके ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं कि आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई, आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई, देख रहा है किसी और ज़माने का ख्वाब, आलमे नौ है अभी पर्दे तकदीर में, मेरी निगाहों में है उसकी सहर बेहिजाब, पर्दा उठा दूं अगर चेहरे अफकार से, ला ना सकेगा फरंग मेरी नवाओं की ताब. I think it's very relevant to our outgoing Prime Minister. पर्दा उठा दूं अगर चेहरे अफकार से, ला ना सकेगा फरंग मेरी नवाओं की ताब, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हयात कश्मकशे इनकलाब. So we also are waiting for a revolution. Okay, there the philosopher is giving you, he is looking at the vision for tomorrow. It is coming through a revolution. People have to get up and they have to pursue that revolution, and that's how it's going. ये इकबाल की कोई 100 साल पुरानी नज़्म है मस्जिद कुर्तबा, जिसमें वो जिसको कंक्लूड वो इस तरह से कर रहे हैं. So that's it from my side. Yeah. In addition to his poetry, Iqbal ki, I think we have not scratched the surface of his huge letters and different other writings. हमें उसको भी पढ़ना चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए. इकबाल से सीखने के लिए हमारे पास बहुत गुंजाइश है. lot of research हमें करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए. Because we have not done anything at all, it seems. ठीक है.